And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 9th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about India-Sri Lanka fishermen issue, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So as I said, this article is about India-Sri Lanka fishermen issue. In this issue, we will see that many fishermen from mostly Tamil Nadu state of India, they cross the international maritime boundary line between India and Sri Lanka, and they enter into Sri Lankan water. And after that, many of them get caught by Sri Lankan authorities, by Sri Lankan Navy, and then they are sent to Sri Lankan jail. And as a result of this, the government of India lobbies, it tries to get these fishermen released, and that creates unnecessary tension between India and Sri Lanka. तो इस आर्टिकल की मदद से we will try to understand what are the factors that leads to Indian fishermen entering into Sri Lankan water. And there are three main factors. First is that the Sri Lankan water is more rich in fishes. Second factor is the Kachativu Island, and third one is the continental shelf between India and Sri Lanka. So we will understand all these three factors in details. The first factor behind Indian fishermen consistently entering into Sri Lankan water is that Sri Lankan water is more rich in fishes. तो इसके पीछे का जरा कारण भी समझते हैं. Why Sri Lankan water is more rich in fishes? तो as you all must be knowing that there a civil war continued or prevailed in Sri Lanka for about 4 decades, right since 1976 when LTTE was created till 2009 when LTTE was completely demolished. आप सबको तो श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं इन डिटेल इन आवर न्यूज़ पेपर एनालिसिस ऑफ 10 फरवरी 2020. वहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे जो श्रीलंका की जो मेजर पॉपुलेशन है जो श्रीलंका के सदर्न रीजन में रहती है, मेनलैंड रीजन में रहती है, जिसको सिंघाला पॉपुलेशन कहते हैं, सिंघालीज, एंड जो नॉर्दर्न प्रोविंस में जाफना प्रोविंस में रहने वाले तमिलियंस हैं, उनके बीच में एक तरह का सिविल वॉर चलता रहा फॉर अबाउट 4 डिकेड्स. और इस सिविल वॉर के कारण काफ़ी ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंसेज रहे श्रीलंका के अंदर, और ख़ासकर इस साइड में तमिलियन जहाँ पे रहते हैं जाफना प्रोविंस में, उस साइड में फिशिंग ज़्यादा होती है. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर ये तमिलियंस बहुत ज़्यादा फिशिंग कर नहीं पाए फॉर द पर्पस ऑफ देयर ओन कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन, और फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. तो बिकॉज दे कुड नॉट कंज्यूम और दे कुड नॉट एक्सपोर्ट मोर एंड मोर फिशेज बिकॉज ऑफ सिविल वॉर, इस कारण से जो श्रीलंकन वाटर साइड में जो फिशेज हैं उनकी पॉपुलेशन है, जो उनकी डेंसिटी है, दैट रिमेंड इंटैक्ट. वो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग रहा, एंड इट्स ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो कंजर्व्ड रहा. लेकिन वो उसी तरफ इंडियन साइड में काफ़ी ज़्यादा फिशिंग होती रही और अनसस्टेनेबल मैनर में होती रही. फॉर एग्जांपल हमने ट्रॉलर्स यूज किए, हमारे फिशरमैन ने ऑफ तमिलनाडु, दे यूज्ड डायनामाइट फिशिंग. तो इन सब अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस के कारण हुआ क्या, क्यों जो इंडियन साइड के फिशेस हैं या उनका जो इकोसिस्टम है, जो हैबिटेट है, दैट गॉट डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली. और इस कारण से धीरे धीरे इंडियन वाटर्स में, खासकर इस कोस्ट में, फिशेस की डेंसिटी कम होने लगी, जबकि श्रीलंकन वाटर्स में फिशेस की डेंसिटी अभी भी ज़्यादा है. और इस कारण से अब इंडियन फिशरमैन कंसिस्टेंटली इंटर इनटू श्रीलंकन वाटर टू कैच मोर एंड मोर फिश, क्योंकि इंडियन साइड में अब उनको ज़्यादा फिश मिलते नहीं हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंडियन फिशरमैन कई सारे अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस करते रहे, जैसे कि ट्रॉलर फिशिंग या डायनामाइट फिशिंग. तो उसको एक बार ज़रा देख लेते हैं ये क्या होती है ट्रॉलर फिशिंग. देखो, ट्रॉलर फिशिंग में इस तरह का एक लार्ज ट्रॉलर, एक नेट 2 शिप्स के बीच में अटैच कर दिया जाता है, और फिर जो भी फिशेज इसके बीच में आती हैं दे ऑटोमेटिकली गेट ट्रैप्ड. तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक बार में लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी कॉट. लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो फिशेस की अपनी हैबिटेट्स होती हैं, जो उनका अपना इकोसिस्टम होता है, दैट गेट डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली. और इस कारण से ट्रॉलर फिशिंग का लॉन्ग रन में नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि फिशेस की पॉपुलेशन रिप्लेनिश नहीं कर पाती हैं, एंड ओवरऑल द पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ फिशेज इन अ पर्टिकुलर रीजन डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ट्रॉलर्स. और यही हुआ है इंडियन कोस्ट में. हमने कई सालों तक ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया है, और इस कारण से अब इंडियन कोस्ट पे फिशेस का पॉपुलेशन लगातार कम होता जा रहा है, और इस कारण से इंडियन फिशरमैन को अब श्रीलंकन वाटर में एंटर करना पड़ता है.
नेक्स्ट एज ए सेड इज डायनामाइट और ब्लास्ट फिशिंग। डायनामाइट या ब्लास्ट फिशिंग में आप देख सकते हो इस इमेज में की मदद से आप समझ सकते हो। एक डायनामाइट, स्मॉल साइज़ के डायनामाइट्स जो आपको पता है कि एक्सप्लोसिव होते हैं, बम होते हैं एक तरह के, उनको वाटर में इस तरह से एक्सप्लोड किया जाता है, इस तरह से थ्रो करके फिशेस के हैबिटेट रीजन में इस तरह से एक्सप्लोड किया जाता है। तो जब डायनामाइट एक्सप्लोड होता है इस तरह से वाटर में, तो बहुत सारी फिशेज इस एक्सप्लोजन के कारण मर जाती हैं और फिर उनको आराम से कलेक्ट कर लिया जाता है। बट इस डायनामाइट फिशिंग या ब्लास्ट फिशिंग इज ऑल्सो अनसस्टेनेबल मेथड ऑफ फिशिंग। उसमें भी फिशेज की हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ओवरऑल लॉन्ग रन में फिशेज की डेंसिटी और रिप्लेसमेंट रेट काफ़ी कम हो जाता है। और इंडियन कोस्ट पे ट्रॉलर फिशिंग एंड डायनामाइट फिशिंग काफ़ी टाइम तक चलता रहा है। इस कारण से इंडियन कोस्ट पे फिशेज की पॉपुलेशन एंड डेंसिटी कम हो गई है, जबकि श्रीलंकन कोस्ट पे बिकॉज ऑफ देयर सिविल वॉर काफ़ी टाइम तक दे कुड नॉट इंगेज इनटू नॉर्मल फिशिंग एज वेल, और इस कारण से उनके कोस्ट में अभी भी फिशेस की डेंसिटी ज़्यादा है और इस कारण से इंडियन फिशरमैन कीप ऑन एंटरिंग इनटू श्रीलंकन वाटर टू कैच फिशेस। दूसरा कारण है कचातीवू आइलैंड। तो कचातीवू आइलैंड का बैकग्राउंड हमें समझने के लिए हमें ये बात समझनी होगी दैट इंडिया और श्रीलंका ने आपस की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, इंटरनेशनल मैरीटाइम लाइन बाउंड्री, आपस की जो ये बाउंड्री है, दे डिसाइडेड एज ए रिजल्ट ऑफ टू अग्रीमेंट्स कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन 1974 एंड 1976। उसके पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच की ये जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो क्लियर कट डिसाइडेड नहीं थी। बट ये जो दो अग्रीमेंट हमने किए, सम अग्रीमेंट वेयर डिसाइडेड इन 1974, अदर वेयर डिसाइडेड इन 1976, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू अग्रीमेंट्स हमने इंटरनेशनल मैरीटाइम लाइन बाउंड्री इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिमार्केट कर लिया। इसी अग्रीमेंट के दौरान इंडिया कंसीडेड कचातीवू आइलैंड टू श्रीलंका। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइलैंड है कचातीवू आइलैंड, जो इस अग्रीमेंट से पहले इंडिया के पास हुआ करता था, लेकिन इस अग्रीमेंट के बाद दिस आइलैंड दैट वाज अर्लियर अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया वाज सीडेड टू श्रीलंका। तो इसके बाद ये श्रीलंका को दे दिया गया। अब कचातीवू आइलैंड का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी ज़रा समझ लेते हैं। इंडिया के जो फिशरमैन हैं, जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं, वो ट्रेडिशनली फिशेस को पकड़ने के बाद कचातीवू आइलैंड पे जा कर के अपने नेट्स को सुखाते थे, वहाँ पे फिशेस को सॉर्ट करते थे। जैसे बड़ी फिशेज, अलग अलग तरह की फिशेज जो वो पकड़ते हैं उसको फिर अलग अलग वो कैटेगराइज करने का काम कचातीवू आइलैंड पे वो ट्रेडिशनल तरीके से करते रहे हैं तमिलनाडु के फिशरमैन। अब जब भारत सरकार ने कचातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया, उसके बावजूद भी फिशरमैन की ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कई सालों से चलती आ रही है, इनफैक्ट इट हैज़ बीन कंटिन्यूड फॉर 100 ईयर्स, उस प्रैक्टिस को वो गिव अप नहीं करते हैं। दे स्टिल go to Kachativu Island and for the purpose of drying their nets and for the purpose of sorting their fishes। और इस कारण से कचातीवू आइलैंड पे जब वो जाते हैं तो नेचुरली दे वायलेट द इंटरनेशनल मैरीटाइम लाइन बाउंड्री एंड दे एंटर इनटू श्रीलंकन वाटर, और कई दफ़ा इस कारण से दे गेट अरेस्टेड बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज़। एक बार जरा ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि वाई कचातीवू आइलैंड वाज कंसीडर्ड टू श्रीलंका। अगर ये हमारे लिए ट्रेडिशनली इतना इंपॉर्टेंट था, कल्चरली इंपॉर्टेंट था, देन वाई इट वाज कंसीडर्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये आंसर राइटिंग में हमें मदद आएगा। यू सी इन 1974 यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इंडिया कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट। उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑफ कोर्स इट वाज ए पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अकॉर्डिंग टू इंडिया, मतलब इस एक्सप्लोजन का पर्पस न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं था, बट फिर भी वर्ल्ड कंट्रीज़ ने काफ़ी शार्प तरीके से इंडिया के अगेंस्ट रिएक्ट किया। इनफैक्ट यूएस ने तो उसके बाद से एक ग्रुप बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और जिसके अंतर्गत उसने फिक्स कर दिया कि अब कोई भी इंडिया जैसी कंट्री को अब कोई न्यूक्लियर वेपन या टेक्नोलॉजी से मदद नहीं करेगा। So, in short, I'm trying to say that after this 1974 nuclear test operation Smiling Buddha, India was facing criticism from major countries of the world, including Russia, who was considered to be friend of India. उसके अलावा world countries were now planning to put some economic sanctions on India as well, and that is why now India was in search of support from नेबरहुड कंट्री, जो हमारे पड़ोसी देश थे उनके सपोर्ट के लिए अब इंडिया वाज विलिंग फॉर। और इसी कारण से इंडिया ने ये कचातीवू आइलैंड, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड था, जो ओवरऑल इंडिया के कंट्रोल में था टिल 1974, वो इंडिया ने श्रीलंका को कंसीड कर दिया।
Since Sri Lanka was to host the non-alignment summit in 1976, and at the same time it was likely that the next president of United Nations General Assembly may be from Sri Lanka. तो इन दो कारणों से considering the condition prevailing situation, इंडिया ने कचातीवू आइलैंड श्रीलंका को कंसीड कर दिया in hope that Sri Lanka will help India in avoiding some pressure from different countries across the world. और इस कारण से अजय सेड इंदिरा गांधी हु वाज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट विथ श्रीलंका एंड सीडेड द कचातीवू टेरिटरी विदाउट एनी डिस्कशन विथ इंडियन पीपल और पार्लियामेंट. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस कचातीवू आइलैंड को सीड करने के बाद देयर वाज नो इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल passed in the parliament, and this is considered to be in violation of Beribari Union case judgment of Supreme Court. So we will talk about it later. But right now you can see here in this picture, yes, this picture was clicked on after the Kachativu agreement was signed between India and Sri Lanka, between Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi and Sri Lankan Prime Minister of that time Sri Mavo Bandaranaike. तीसरा कारण वाई इंडियन फिशरमैन कीप ऑन एंटरिंग इनटू श्रीलंकन वाटर इज द कॉन्टिनेंटल सेल्फ. सो देखो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ इन तमिलनाडु स्टेट इज़ वेरी नैरो. आप देखो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा. जो वाइट पोर्शन रिप्रेजेंट्स कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ द इंडियन ओशन रीजन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. और तमिलनाडु साइड में ये काफ़ी नैरो है. वाई आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, क्योंकि कई दफ़ा जब मैं क्लास में ये पॉइंट को पढ़ाता हूँ इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जो श्रीलंका हमारे तमिलनाडु के फिशरमैन हैं वाई दे गो ऑन श्रीलंकन साइड. वो इधर भी तो जा सकते थे, उस साइड में भी जाकर के फिशेस पकड़ सकते थे दूर जा कर के. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टिनेंटल सेल्फ इन दिस साइड इज़ नैरो. और आपको एक बात तो पता ही होगी, ये बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है कि फिशेज आर मोस्टली फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ. इसका मतलब ये है कि द फिशरमैन कैन नॉट फाइंड फिशेज इन दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ही नहीं. सो फिशेज विल बी फाउंड ओनली इन दिस रीजन बिकॉज ओनली दिस रीजन हैज़ कॉन्टिनेंटल सेल्फ. और इसी कारण से इंडियन फिशरमैन कैन नॉट गो इन दिस रीजन टू कैच फिशेज बिकॉज हियर यू डू नॉट हैव कॉन्टिनेंटल सेल्फ, so you will not find fishes, and Indian fishermen keep on entering into Sri Lankan water because the continental shelf between India and Sri Lanka is quite broad. In fact, it connects India and Sri Lanka, and that is why most of the fishes density will be found in this region, and that too mostly on the Sri Lankan side. अब सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का वो भी ज़रा देखते हैं. आंसर राइटिंग में हम इस सॉल्यूशन को या वे अहेड को लिख सकते हैं. इंडिया नीड्स टू फाइंड ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ तमिलनाडु फिशरमैन, क्योंकि वी कैन नॉट अलाउ आवर फिशरमैन टू ब्रीच द इंटरनेशनल बाउंड्री अगेन एंड अगेन. Unsustainable method of fishing like dynamite fishing and trawlers should be banned, and India should focus on reviving the fish population on Indian side as well. At the same time, India needs to deploy extra navy and coast guards in order to restrict Indian fishermen from entering into Sri Lankan waters, because it is a kind of breach of international agreement, and India cannot breach this international understanding again and again. Already there is a joint working group established between India and Sri Lanka that is working in order to resolve this fishermen issue between India and Sri Lanka. नवंबर 2016 में इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप के मीटिंग में इंडियन ऑफिशियल्स ने प्रपोज किया था कि 3 साल के लिए इंडियन फिशरमैन को ग्रेस पीरियड दे दिया जाए. 3 साल के लिए इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट ना किया जाए. ये मीटिंग 2016 में हुई थी जॉइंट वर्किंग ग्रुप की. 3 साल के लिए फिशरमैन को अरेस्ट ना किया जाए इंडिया के. एंड इन द मीन वाइल इंडिया विल लुक फॉरवर्ड टू अवेल सम ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड टू दीज फिशरमैन्स. इस तरह का रिक्वेस्ट किया था इंडिया ने श्रीलंका को, लेकिन दिस रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड बाय श्रीलंकन डेलीगेशन. और इस कारण से अभी तक देयर हैज़ बीन नो इफेक्टिव सॉल्यूशन टू दिस इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू. आज भी कई सारे फिशरमैन श्रीलंकन वाटर्स में पकड़े जाते हैं एंड दे आर स्टिल इन श्रीलंकन जेल्स. The next article is taken from international segment. It is about Samudra Setu mission. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations, especially the subtopic Indian diaspora. तो सबसे पहले समझते हैं ये समुद्र सेतु मिशन है क्या.
इट इज़ an ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी ऑन May 5, जिसका मेन पर्पस था टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड हु वेयर लैंग्वेजिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। वो इंडियंस जो बाहर में फंस गए थे बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, उनको वापस अपने देश लाना, रिपैट्रिएट करना was the objective of this समुद्र सेतु मिशन, एंड दिस मिशन एज ए सेड वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। और इस मिशन के लिए जो इंडियन नेवल शिप्स यूज किए गए हैं, दे आर INS जलासवा, INS ऐरावत, INS सरदुल एंड INS मगर। हो सकता है कि हमसे प्रीलिम्स एग्जाम में ये नाम पूछ लिए जाएं, सो प्लीज़ कीप दीज नेम्स इन माइंड। एंड दिस मिशन कंटिन्यूड फॉर अबाउट 55 days, एंड इन दीज 55 days about 3,992 Indians have been repatriated। इंडियन नेवी ने पहले भी इस तरह का इनिशिएटिव लिया है टू रिपैट्रिएट इंडियन डायस्पोरा फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम ट्रबल्ड रीजन। 2006 में लेबनान में जब सिविल वॉर चल रहा था तो उस टाइम में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सुकून चलाया था टू रिपैट्रिएट इंडियंस बैक टू इंडिया। उसके अलावा 2015 में येमेन सिविल वॉर से इंडियंस को रिपैट्रिएट करा करके लाया गया था, और उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था बाय इंडियन नेवी, दैट वाज नेम्ड ऑपरेशन राहत। तो फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों नाम भी आप अपने माइंड में रखेंगे। अब इसी तरह का एक मिशन एयर इंडिया भी चला रही थी अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। और इसका भी ऑब्जेक्टिव यही था टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स हु आर स्ट्रैंडेड अब्रॉड ड्यू टू लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो एयर इंडिया की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कई सारे इंडियंस को जो बाहर में फंसे हुए थे उनको वापस से इंडिया रिपैट्रिएट करके लाया है, और उस मिशन का नाम था वंदे भारत मिशन। अब जरा देखते हैं कि ये समुद्र सेतु मिशन या वंदे भारत मिशन को हम कैसे अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए ऑन इंडियन डायस्पोरा तो वहाँ पे आप इसको ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। यू कैन राइट दैट इंडियन गवर्नमेंट गिव्स ह्यूज इंपॉर्टेंस टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डायस्पोरा। दिस कैन बी बेस्ट एग्जेम्प्लीफाइड बाय समुद्र सेतु मिशन एंड वंदे भारत मिशन दैट वाज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियंस हु वर स्ट्रैंडेड अब्रॉड ड्यू टू कोविड-19। The next article is again taken from international segment. It is about the US pulled out of WHO, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, आप सबको तो एक बात पता ही है दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ WHO हैज़ बीन अंडर स्कैनर। इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर इन अवॉइडिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। दुनिया के कई सारी मेजर कंट्रीज जैसे कि US, जापान, उन्होंने लगातार WHO को कंडेम किया है बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर इन कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। US एंड जापान हैव बीन कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइजिंग WHO फॉर एक्टिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। उनका ऐसा मानना है कि WHO एक्टेड अंडर इंसिस्टेंस ऑफ चाइना, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, एंड दैट इज़ वाई इट कुड नॉट मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन इट्स डिसीजन मेकिंग, इट कुड नॉट मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन इट्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और पूरी दुनिया को इस कारण से कोरोना वायरस के बारे में एडवांस में जानकारी नहीं मिल पाई बिकॉज WHO डिड नॉट शेयर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस इन ट्रांसपेरेंट मैनर इन द अर्ली फेज। और इस कारण से ये जो एक क्राइसिस है, इट कुड हैव बीन curtailed टू चाइना ओनली। दिस क्राइसिस took a shape of pandemic। अगर WHO ने प्रोएक्टिवली काम किया होता, दिस व्हाट US एंड जापान बिलीव, अगर WHO ने प्रोएक्टिवली काम किया होता, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया होता, तो इस पैंडेमिक को चाइना तक ही रोक दिया जाता, ये पूरी दुनिया भर में पैंडेमिक का शेप नहीं लेता। और इस कारण से इसी साल 30 मई को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया दैट US विल पुल आउट ऑफ WHO, US विल नो लॉन्गर रिमेन पार्ट ऑफ WHO। लेकिन उस टाइम में बस उन्होंने अनाउंस किया था। अब करंट न्यूज़ ये है कि US प्रेसिडेंट के ऑफिस से एक फॉर्मल नोटिस सर्व किया गया है रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ US फ्रॉम WHO। नोटिस हैज़ बीन सेंट टू यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ऑन मंडे, और इस नोटिस के हिसाब से अब US ने बोला है कि इट वांट्स टू पुल आउट ऑफ WHO। तो अब नोटिस सर्व किया US ने, इस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ WHO, नोटिस सर्व करने के 1 साल बाद ही कोई कंट्री WHO से पुल आउट कर सकता है। सरल शब्दों में 1 साल का नोटिस देना होगा बिफोर पुलिंग आउट ऑफ WHO। सो द US
pulling out of or US withdrawal from WHO will be effective from 6th July 2021। तो 6 जुलाई 2020 को US ने नोटिस सर्व किया है, तो अगले साल 6 जुलाई 2021 को US will formally move out of WHO। अब जरा US के इस डिसीजन का एनालिसिस करते हैं कि वेदर इट इज़ जस्टिफाइबल और नॉट। एनालिसिस ऑफ अमेरिकाज डिसीजन टू पुल आउट ऑफ WHO। जो इसके क्रिटिक्स हैं उनका ऐसा मानना है कि दिस डिसीजन इज़ नॉट जस्टिफाइबल। अभी विड्रॉल इन द करेंट टाइम विल मेक रिवाइवल फ्रॉम कोविड-19 मोर डिफ़िकल्ट। अभी दुनिया के लिए जो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है वो है कोविड-19 से के अगेंस्ट फाइट करना और कोविड-19 के अगेंस्ट पूरी दुनिया को रिवाइव करना। और यूएस का इस तरह का एब्रप्ट डिसीजन दिस विल हैम्पर वर्ल्ड्स फाइट अगेंस्ट कोविड-19। उसके अलावा यूएस इज़ WHO's लार्जेस्ट डोनर। हर साल यूएस लगभग $450 मिलियन का कंट्रीब्यूशन देता है WHO को। तो सडनली व्हेन यूएस विल पुल आउट ऑफ WHO's फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विल गेट वीकेंड एंड ओवरऑल वर्ल्ड्स फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विल गेट वीकेंड। और इस कारण से जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि यूएस का ये डिसीजन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि WHO नीड्स रिवाइवल एंड रीस्ट्रक्चरिंग नॉट अबैंडनिंग। ये जो प्रॉब्लम है का सॉल्यूशन है कि हम WHO को और पावरफुल बनाएं, उसको और ऑटोनोमस बनाएं, उसको और इफेक्टिव बनाएं, उसकी फंडिंग के हम ऑटोनोमस सोर्सेज को फाइंड करें। नॉट अबैंडनिंग, WHO को पूरी तरह से अबैंडन कर देना, ख़त्म कर देना सॉल्यूशन नहीं है। वी नीड टू रिवाइव WHO, ऐसा इसका बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है। इनफैक्ट पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन ने, अदरवाइज आप सबको पता है कि यूरोपियन यूनियन इज़ अ क्लोज एलाई ऑफ US, लेकिन इस पूरे मुद्दे पे यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया है US के इस एक्शन को। यूरोपियन यूनियन हैज सेड दैट इट विल रिमेन इंटैक्ट विथ WHO एंड इट विल हेल्प WHO विथ फंडिंग so that WHO could work in effective manner and help world to fight against COVID। लेकिन जो इसके सपोर्टर्स हैं, जो इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि WHO एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फेल्ड। इट हैज़ नॉट जस्ट फेल्ड इटसेल्फ, इट हैज़ फेल्ड एंटायर वर्ल्ड। जिस तरीके से, जिस इररिस्पॉन्सिबल मैनर में WHO ने काम किया है, इस कारण से ही पूरे दुनिया भर में अब ये मेजर क्राइसिस हुआ है। दिस प्रॉब्लम कुड हैव बीन कर्ब्ड टू चाइना इटसेल्फ, बट सिंस इट एक्टेड इन कंप्लिसिट विथ चाइना, दिस स्मॉल रीजनल इन्फेक्शन ऑफ कोरोना बिकेम और टुक शेप ऑफ पैंडेमिक। सो WHO appears to be incompetent। और अब इसका सॉल्यूशन यही है कि WHO एज एन ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से अबैंडन कर दिया जाए एंड लेट अस बिल्ड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी मोर इफेक्टिव, मोर कॉम्पिटेंट। सपोर्टर्स का ऐसा मानना है। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। सबसे जो मैंने आपको कारण बताया, जो लोग भी क्रिटिक्स हैं WHO के, उनका ऐसा मानना है कि WHO इज़ एन इनकम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास ऐसी कैपेसिटी ही नहीं है। अब उसका एक रिसेंट एग्जाम्पल देखते हैं टू प्रूव दैट हाउ WHO इज़ अपीयरिंग टू बी एन इनकम्पिटेंट, इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हाल फिलहाल में दुनिया के लगभग 32 डेवलप्ड कंट्रीज़ के 239 साइंटिस्ट ने एक ओपन लेटर लिखा WHO को, जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, प्रूफ्स दिए दैट द कोरोना वायरस रिमेन्स एयर बॉर्न फॉर अबाउट 8 आवर्स। मतलब कोई अगर एक इंसान जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकला हुआ एयर, उसके अंदर वो एयर आसपास के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जाता है, उसके अंदर कोरोना वायरस उस एयर के अंदर 8 घंटे तक जिंदा रह सकता है। इसका ये मतलब है कि ये इंसान एक बार किसी एक जगह पे गया है अगर, और फिर उसके बाद वो उस जगह से चला भी जाए, फिर भी उस एयर में जहाँ पे भी ये इंसान था, उस एयर में लगभग 8 घंटे तक कोरोना वायरस रहेगा। एंड इफ़ एनीवन एल्स कम्स इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद दिस एयर, देन दे ऑल्सो माइट आर ऑन द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। ये है नई फाइंडिंग, इसके कुछ प्रूफ भी दिए हैं। अभी तक ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बीन इस्टेब्लिश्ड, लेकिन ये नई फाइंडिंग है जो दुनिया के 239 साइंटिस्ट ने लाई है और उसके लिए उन्होंने अपने तरफ से कुछ प्रूफ्स भी दिए हैं। अब WHO का अभी तक इस पर क्या मानना था? WHO का ऐसा मानना था कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कोरोना वायरस तभी स्प्रेड होगा जब इस इंसान का, जो इन्फेक्टेड इंसान है, उसका कुछ नेजल ड्रॉप उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकले, उसके नाक से या मुंह से निकले नेजल ड्रॉप। जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे नाक से निकलते हैं या मुंह से निकलते हैं जब हम बातें करते हैं, या फिर व्हेन वी कफ और व्हेन वी स्नीज, तो जो नेजल ड्रॉप्स निकलते हैं उसी से कोरोना वायरस फैल सकता है, क्योंकि बस नेजल ड्रॉप के अंदर कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। इट कैन नॉट सर्वाइव इन एयर, ऐसा WHO का मानना था। अभी तक उसके गाइडलाइंस भी इसी तरीके के थे।
लेकिन और WHO ने इस कारण से ही पहले गाइडलाइन भी रिलीज़ किया था कि सब लोगों का मास्क पहनना जरूरी नहीं है, ओनली दोज पीपल हु आर इन्फेक्टेड और नॉट सिक ओनली दे शुड वियर मास्क। तो अब आप देख सकते हैं कि आफ्टर 3 months ऑफ दिस पैंडेमिक, लगभग 3 महीने पहले इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था और लगभग दुनिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। उसके बाद भी WHO इज़ नॉट सर्टेन अबाउट दिस कि ये एयरबॉर्न है या वाटर नजल ड्रॉपलेट से फैलता है। सो दिस प्रूव्स द इनकम्पिटेंसी ऑफ WHO। कई सारे एग्जाम्पल हैं टू प्रूव इनकम्पिटेंसी ऑफ WHO। देखो, सबसे पहले WHO ने कहा दैट कोरोना वायरस इज अंडर कंट्रोल इन चाइना इटसेल्फ, और पूरी दुनिया को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ नो पोटेंशियल टू टर्न इनटू पैंडेमिक। और अब हम सब जानते हैं कि इसने कितना ग्रेव पैंडेमिक का फेस ले लिया है। अगर चाइना के अंदर ही इसको कंट्रोल कर लिया जाता तो अभी पूरी दुनिया को इस तरह के डैमेज से बचाया जा सकता था। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू अर्ली गाइडलाइंस ऑफ WHO, कोरोना वायरस स्प्रेड्स ओनली थ्रू नेजल ड्रॉपलेट्स, सो हेल्दी पीपल नीड नॉट टू वियर मास्क। इनफैक्ट WHO ने तो स्टार्टिंग में ही अप्रैल 6 को उसने गाइडलाइन रिलीज़ किया था जिसमें उसने कहा था कि सब लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने इस गाइडलाइन को नेग्लेक्ट किया। भारत सरकार ने सब लोगों के लिए मास्क मैंडेटरी कर दिया था। तो WHO का ये मानना था कि जो नेजल ड्रॉपलेट्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, बस उसी से कोरोना वायरस फैलता है। इट इज़ नॉट एयरबॉर्न, मतलब हवा से नहीं फैल सकता। इस कारण से सबको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अब WHO के इस पॉइंट पे भी WHO को खुद ही कन्फ्यूजन आ गया है कि वेदर इट इज़ एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट बॉर्न। उसको कहते हैं एयरबॉर्न और एरोसोल बॉर्न। तो WHO इज़ नाउ स्टिल कन्फ्यूज्ड कि वेदर इट इज़ एयरबॉर्न और ओनली एरोसोल बॉर्न। WHO has changed its public guidelines for more than 300 times in past 3 months। पिछले 3 महीनों में बार बार अपने गाइडलाइंस उन्होंने बदले हैं कि ऐसे करना है, ऐसे एक्ट करना है। So many times they have changed। और इवन ऑन दिस पॉसिबिलिटी ऑफ एयरबॉर्न, आपको जैसे मैंने बताया इतने सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी अभी तक WHO क्लूलेस है। उसको पता ही नहीं है कि वेदर इट इज़ एरोसोल बॉर्न और एयरबॉर्न। और इस कारण से दुनिया भर की एजेंसी, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अभी आप WHO का ये जो वीडियो है जो द गार्जियन के हवाले से आया है, इसको आप सुनेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हाउ WHO's अथॉरिटीज़ आर क्लूलेस। उनको खुद ही नहीं पता कि हाउ दिस वायरस इज़ बिहेविंग। तो आई वुड लाइक यू टू हियर their opinion। We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19. But we have spoken about the importance of all of the different potential modes of transmission. This is a respiratory pathogen, and so it is important that what we know fits into the guidance that we have. The dose of the virus that is needed, in particular in this route of transmission, that is the aerosol or airborne transmission. So these are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. अब इस प्रेस रिलीज़ के बाद WHO की और भी क्रिटिसिज्म हो रही है पूरी दुनिया भर में। यू कैन सी हाउ WHO एक्सपर्ट्स आर बीटिंग अराउंड द बुश। उनको नहीं पता व्हाट टू से, एंड दैट इज़ वाई दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश दैट दिस इज जस्ट अ डेवलपमेंटल फेज, वी आर जस्ट लुकिंग इनटू इट। तो that is why experts believe that WHO as an organization has failed itself and it has failed entire world. The next article is taken from National segment. It is about Malabar Rebellion. This topic is important from our syllabus paper 2 Indian history point of view, especially the subtopic modern Indian history and important personalities and issues. So देखो, मलाबार रिबेलियन को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1920। तो देखो, इसको खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 2 पार्ट थे, खिलाफत मूवमेंट और दूसरा था नॉन कॉपरेशन। खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया था मुस्लिम लीडर्स ने। उसके 2 मेन लीडर थे जिनको हम अली ब्रदर्स नाम से जानते हैं, मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसके पीछे जो मेन कारण था दैट वाज इनजस्टिस डन टू टर्की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने टर्की को ब्रेक कर दिया। उस टाइम में टर्की को ऑटोमन एम्पायर बोलते थे। ऑटोमन एम्पायर का डिटेल्स में ऑलरेडी आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ।
एंड टर्की वाज वेरी रेस्पेक्टफुल फॉर मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि टर्की वाज सीट ऑफ खलीफा, और खलीफा आपको पता है कि दे आर कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स फॉर ऑल मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इस कारण से जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उसमें आपको पता है कि टर्की वाज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम में भी ब्रिटिशर्स ने पूरे दुनिया भर के मुस्लिम्स को इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स इन इंडिया को प्रॉमिस किया था कि टर्की के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, उसके खलीफा और उसके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा। लेकिन जब एक बार वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, देन एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ सेवरेज टर्की वाज डिसमेंबर्ड, उसके टेरिटरीज को ब्रेक किया जा रहा था। दैट इज़ वाई द इंडियन मुस्लिम्स गॉट डिसइंचेंटेड, दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और उन्होंने इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लॉन्च कर दिया। और खिलाफत मूवमेंट के साथ ही साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था, एंड इट वॉज बीइंग लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके पीछे के मेन कारण थे जलियांवाला बाग मसाकर इन 1919, और दैट वाज कंडक्टेड बाय जनरल डायर। और जनरल डायर के अगेंस्ट जो कमीशन बैठाया गया था, हंटर कमीशन, उसने जनरल डायर को बिल्कुल फ्री कर दिया। उसने जनरल डायर को इनफैक्ट रिवार्ड किया फॉर हिज एक्शन इन जलियांवाला बाग। तो नेचुरली इंडियंस गॉट फ्रस्ट्रेटेड। उसके अलावा रॉलेट बिल लाया गया, एंड रॉलेट बिल आप सबको आपने बेसिक हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा। इट रिस्ट्रिक्टेड द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडियंस। तो इस कारण से इंडियंस, खासकर इंडियन नेशनल लीडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स, दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और उन्होंने मिलकर के एक मूवमेंट लॉन्च किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और जबकि जो मुस्लिम लीडर्स थे, दे वर लॉन्चिंग खिलाफत मूवमेंट। तो इन दोनों को एक साथ लेकर के आए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ब्रॉट खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुगेदर विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो उनको लगा कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी इस कारण से और बढ़ जाएगी, और इस कारण से इन्होंने दोनों ही लीडर्स को कन्विंस किया और मिल करके कंबाइंड मूवमेंट चलाया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जिसका नाम था खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया के में पॉपुलर होने लगा, और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये स्प्रेड होने लगा। एंड खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू केरला एज वेल। उस टाइम में ये जो रीजन है केरला का, दिस इज नोन एज मालाबार रीजन, दिस वाज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ मैसूर स्टेट, एंड खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रीच टू दिस मालाबार रीजन एज वेल। और यहाँ पे खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मापिल्ला रेबिलियन नाम से जाना जाता है, मापिल्ला रेबिलियन या मालाबार रेबिलियन नाम से जाना जाता है, या मापिल्ला रेबिलियन नाम से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज मापिल्ला रेबिलियन बिकॉज इट वाज मोस्टली कंडक्टेड बाय मापिल्लाज ऑफ मालाबार रीजन। मापिल्लाज आर द मुस्लिम्स ऑफ मालाबार, जिन्होंने इस एरिया में खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। अब इस मापिल्ला रिबेलियन में हुआ क्या कि जो यहाँ के मुस्लिम फार्मर्स थे, जिनको मापिल्ला कहते हैं, मालाबार के मुस्लिम फार्मर्स नोन एज मापिल्ला, दे कंडक्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ का आप सिचुएशन समझो, जो लैंडलॉर्ड्स हैं दे वेर मोस्टली हिंदूज, एंड दीज लैंडलॉर्ड्स वेयर क्लोज फ्रेंड्स एंड एक्टिंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ ब्रिटिशर्स। जबकि ज़्यादातर जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, दे वेयर मुस्लिम्स एंड दे वेयर नोन एज मापिल्लास, एंड दीज मापिल्ला फार्मर्स कंडक्टेड revolt against Hindu landlords who were close friends and were close coordinates of Britishers। तो इस तरीके से खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मालाबार रीजन में लॉन्च हुआ, जिसको हम लोग मापिल्ला रिबेलियन नाम से भी जानते हैं। अब देखो, हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड ऑन दिस मापिल्ला रिबेलियन। उन कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है दैट मापिल्ला रिबेलियन वाज पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और ये जो मापिल्ला रेबल्स थे, ये जो मुस्लिम मालाबार फार्मर्स थे, दे आर फ्रीडम फाइटर्स, तो उनको फ्रीडम फाइटर्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। जबकि कुछ प्रो हिंदुत्व हिस्टोरियंस हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये जो मापिल्ला रेबल्स थे, ये जो मुस्लिम मालाबार के फार्मर्स थे, जिनको मापिल्ला फार्मर्स बोलते हैं, दे वेर राइटर्स, वो दंगाई थे, एंड दे कंडक्टेड राइट्स अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो कुछ एक प्रो हिंदुत्व हिस्टोरियंस इसको हिंदू मुस्लिम राइट्स का फेस देते हैं, जबकि कुछ एक हिस्टोरियंस का मानना है कि दिस वाज नेशनलिस्ट मूवमेंट, and that is why the Mapilla rebels should be considered as nationals and they should be considered as freedom fighters। अब करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखो, मलयालम फिल्म डायरेक्टर आसिक आबू ने अनाउंस किया दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू फिल्म जिसका नाम होगा वरियम कुन्नन, एंड दिस वरियम कुन्नन इज़ बेस्ड ऑन वरियम कुन्नत कुंजनम हाजी। और ये
this Waryam Kunnat Haji was the main leader of this Malabar Mappala rebellion of 1921. He was a Muslim farmer of Malabar region, that means he was also a Mappilla, and he led this Malabar rebellion, Mappilla rebellion. और इनको कुछ लोग इनको फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं, इनको नेशनलिस्ट की तरह गिना जाता है. कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वाज अ फ्रीडम फाइटर, जबकि कुछ प्रो हिंदुत्व वाले लोग कहते हैं कि ही वाज अ राइटर, एक दंगाई थे जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट इन्होंने दंगा किया. तो जब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही आसिक अबू ने अनाउंस किया दैट ही इज़ गोइंग टू मेक फिल्म ऑन वरियम कुन्नत हाजी, तो बहुत सारे जो प्रो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है जैसे संघ परिवार वगैरह, इन्होंने फिर प्रोटेस्ट चालू कर दिया. इन्होंने कहा कि आप एक ऐसे इंसान को जिसने, जो एक दंगाई है, जो एक राइटर है, जिसने हिंदूज़ के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ की है, उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उसके लिए एक मूवी बना रहे हैं, उसको आप मूवी में हीरो की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस कारण से ये पूरा का इशू कई दफ़ा न्यूज़पेपर्स में लगातार आ रहा है. एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव कि दिस मालाबार रिबेलियन इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम. हो सकता है वो प्रीलिम्स में पूछ लें या आने वाले मेंस में पूछ लें, क्योंकि 2021 में इस मालाबार रिबेलियन के 100 साल भी पूरे हो जाएंगे. उसके अलावा ये मापिला रिबेलियन बार बार न्यूज़ में आ रहा है. इस कारण से भी आई बिलीव दैट इन अपकमिंग एग्जाम्स दे माइट आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू मालाबार रिबेलियन. ऑफ कोर्स ये इस मूवी के बारे में वो कुछ नहीं पूछेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क ये मूवी कौन है और इसमें क्या स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो नहीं पूछेंगे. दे विल आस्क अबाउट मापिला रिबेलियन. सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस रिबेलियन. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 515 to 517. Topic number 515 is about hand wash importance and coronavirus. So viruses such as coronavirus, influenza causing virus, Ebola, Zika are the genetic materials encased in a layer of fat called lipid envelope. Soap molecules are pin shaped with one end of the molecule, that is head side, is attracted to the water and repelled by fat and protein. The other side of the molecule, that is tail side, is attracted to the fat and it is repelled by the water. The tail portion of the molecule competes with the lipids in virus envelope. Since the chemical bonds holding the virus together are not very strong, the long tail gets inserted into the envelope of the virus and breaks the lipid envelope of the virus. तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हमारा सोप कोरोना वायरस के अगेंस्ट या किसी भी वायरस के अगेंस्ट काम करता है. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. Topic number 516 is about Essential Commodities Act. The Department of Consumer Affairs administered the Essential Commodities Act of 1955 and also the Maintenance of Supplies and Essential Commodities Act of 1980. The government uses it to regulate the production, supply and distribution of whole host of commodities it declare essential in order to make them available to consumers at fair prices. Additionally, the government can also fix the maximum retail price of any packaged product that it declares as an essential commodity. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 517 is about cess. A cess is tax on tax. A cess is usually imposed additionally when the state or the central government looks to raise funds for a specific purpose. For example, the government levies an education cess to generate additional revenue for funding primary, secondary and higher education. It can be levied on both direct and indirect taxes. If the cess collected in a particular year goes unspent, it cannot be allocated for other purposes. The amount gets carried over to the next year and can only be used for the cause it was meant for. Cess is not shared between central and state government. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 512 to 514 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.